Hello dear students, welcome back to my class. So today in this class I'm going to continue that chapter. Which chapter? The fundamental unit of life. So we were discussing about the cell. In the last class we learnt about the cell membrane. In the previous video we have seen how the cell membrane के across movement कैसे होता है. So dear students, let's learn about osmosis today. Dear students, to understand this, let's learn some basic terms. Okay. Solution and solute. So, let's understand with this solution first. What do you mean by solution? So, to understand the solution, let's take a basic example. Take one glass and add some water into that, then add some salt and sugar to that glass and stir it well or mix it well. So the water, that water is not simple water. After mixing these two things, वो होगा एक solution. Solution means it is a mixture of two components or three components. It is a mixture of two components or three components, as we have added sugar and salt into the water. So solution is a mixture of the components. So students, we added sugar and salt into the water. So what has been dissolved here? Sugar dissolved, salt dissolved और water dissolved. क्या water घुल गया sugar और salt के साथ, या sugar और salt water में घुल? Obviously sugar and salt has been dissolved with the water. पानी तो डिजोल्व नहीं होता है. तो द थिंग विच इज डिजोल्व इज नथिंग बट solute. Understood? What is solute? The substance which we added into the water will be dissolved. That substance is known as solute. Students, यहाँ पर क्या डिजोल्व हुआ? यहाँ पर नमक और मतलब salt and water. And in which substance it's been dissolved? It has been dissolved in water. So water has become solvent. अंडरस्टूड? जिस चीज में वो डिजोल्व होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो डिजोल्व होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट. अंडरस्टूड? ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वाटर हो या सॉल्ट हो, शुगर हो, सिर्फ डिजोल्व हो, सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो. कोई भी ऐसी चीज जो डिजोल्व हो इज नोन एज सॉल्यूट, एंड जिसके अंदर भी डिजोल्व हो वो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं. हियर वी हैव three conditions, students: hypotonic, isotonic and hypertonic. Here hypo means zyada, more, and high means hyper means more. Hypo means hypo का मतलब होता है कम, एंड आइसो का मतलब होता है बीच में. मतलब हाइपर और हाइपो के बीच में जो स्टेट आती है उसे हम कहते हैं आइसो. आइसोटोनिक. हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है? सॉल्यूट ज्यादा होता है सॉल्वेंट से. हाइपर में कौन ज्यादा हुआ? सॉल्यूट. देन हाइपरटोनिक, इसमें क्या ज्यादा होता है? इसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है. हाइपरटोनिक. हाइपोटोनिक एंड isotonic. हाइपर में एज आई सेड सॉल्यूट ज्यादा हुआ सॉल्वेंट से. में क्या ज्यादा होता है? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट विल बी मोर इन हाइपोटोनिक. Students, in hyper solute is more and in hypo solute is less. सॉल्वेंट ज्यादा. एंड व्हाट इज देयर इन आइसोटोनिक? दोनों चीजें बराबर हो जाती है यहाँ पर. मीन्स आई राइट इट हियर, सॉल्यूट विल बी इक्वल्स टू द सॉल्वेंट. आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टैंड थ्री ऑफ दिस कंडीशंस: हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक.
So students, to understand the process of osmosis, we will take a basic example, okay, which can be performed at home easily. Okay, please do it. For that you have to take 2 glasses and you have to fill 2 of the glasses with the water. Students, in one of the glass you have to add sugar and then दोनों भी ग्लासेस में एक एक रेजिन्स मतलब किशमिश डालना है. देन लीव द सोल्यूशन फॉर सम टाइम. देन आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट जो द सिंपल लाइक जिसमें शुगर नहीं एडेड थी, वो सिर्फ पानी के अंदर जो आप किशमिश डाले थे वो फूल जाती है, और वो वाला पानी जिसके अंदर आपने शुगर ऐड किया था एंड वो किशमिश क्या हो गई है, पिचक गई है. So you will say that we have added water in both of the glasses and we have added like resin in both of the glasses, but in one of the glasses you have added sugar too, in one glass. तो ग्लास में आपने शुगर डाला था, वो ग्लास की जो रेजिन होती है वो श्रिंक हो जाती है. Why it is so? Because the reason is osmosis. It happens because of osmosis. So students, in the last class we learnt about the diffusion. क्या होता है डिफ्यूजन में? सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है कि वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं. यहाँ क्या हुआ, जो हमारी किशमिश थी, रेजिन थी, उसके बाहर का जो पानी था, वो जो सॉल्वेंट था वो ज्यादा था. पानी ज्यादा था तो कहाँ जाएगा? पानी जहां पर कम हो, है ना. That is why it fill up in the resin. Understood? पानी किशमिश में जाकर भर जाता है. वो जो किशमिश होती है, वो रेजिन जो होती है वो फूल जाती है. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो किशमिश के बाहर जो सॉल्वेंट है उसके सराउंडिंग में वो ज्यादा है, इसीलिए उसके अंदर चले जाता है. वो वहां पर सैल्यूट कम है. What about one more condition? There we have added sugar in the water. वो किशमिश को क्या हुआ, वो श्रिंक हो गई, क्योंकि जो किशमिश के बाहर जो पानी था उसमें सैल्यूट ज्यादा था, सॉल्वेंट कम था. और कहाँ से कहाँ जाएगा? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में, है ना. बाहर पानी कम है एंड किशमिश के अंदर क्या है, पानी ज्यादा है. ज्यादा से वो कहाँ चले गया, बाहर गया, इसलिए वो किशमिश श्रिंक हो गई. तो स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? स्टूडेंट्स, हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, जब सेल के बाहर सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो सॉल्वेंट चला जाता है सेल के अंदर. स्टडीड जस्ट नाउ, पानी चला गया किशमिश के अंदर तो फूल गई. एंड हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है? हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल के बाहर सॉल्वेंट कम होता है, इसलिए सेल के अंदर से सॉल्वेंट बाहर निकल आता है. सेल के अंदर से सॉल्वेंट बाहर निकल आता है, इसलिए हमारी किशमिश क्या होती है, श्रिंक हो जाती है. सो दैट इज नथिंग बट osmosis. So our third condition, which I told you already, here the solute and solvent are equal. Here also we have added रेजिन. किशमिश हमें इसमें भी डाली है, बट यहाँ पर क्या होता है, किशमिश ना तो फूलती है ना तो श्रिंक होती है. क्यों? फॉर एग्जाम्पल, किशमिश के अंदर जो पानी है वो 1 ग्राम होगा फॉर एग्जाम्पल, एंड किशमिश के बाहर जो सॉल्वेंट होगा वो पानी वो 2 ग्राम होगा. तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है थोड़ा सा पानी इसके अंदर चले जाए, तो हो सकता है ये 1 ग्राम हो या 2 ग्राम, ये 2 ग्राम हो, और थोड़ा सा पानी बाहर भी जा सकता है. थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है ना अंदर बाहर हो सकता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट तक. इक्विलिब्रियम क्या होता है, सेल के अंदर एंड सेल के बाहर कंडीशन बराबरी की होती है. क्या होता है, ना तो ये श्रिंक होती है ना तो ये फूलती है, तो इसे हम कहते हैं आइसोटोनिक. स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टूड दिस हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक.